वेलकम टू ZT क्लासेस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि एसिड्स को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो एसिड्स ब्रॉडली जो है तीन बेसिस पर जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। वन इज बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। सोर्स के बेस पर हम बोल सकते हैं कि एसिड्स आर आइदर नेचुरल एसिड जो आपको नेचर में मिल रहे हैं और मिनरल एसिड जिनको सिंथेसाइज किया जा रहा है। ठीक है। एंड एसिड्स कैन बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन वी कैन से एसिड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जहां पर वाटर के अंदर जो एसिड है उसकी परसेंटेज जो है दैट इज हाई। एंड सेकेंड इज डाइल्यूट एसिड वेयर द परसेंटेज ऑफ एसिड इन वाटर इज लो। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ acid can be either strong acid where the acid in water will get ionized fully, or acids can be weak acid where they are not getting ionized fully in the water. Let's see few examples of organic acids present in nature and used in day-to-day life. The first one is vinegar, which is 5 to 8% of acetic acid. The apple contains malic acid, milk contains lactic acid, lemon is citric acid, oranges contains vitamin C, which is ascorbic acid, ants they contain formic acid, then grapes is tartaric acid, tomatoes are oxalic acid, tea is tannic acid, and the last one, nettle plants, which has got small needles, so they contain formic acid. जो formic acid है that is methanoic acid and it is slightly poisonous and irritating. So when ant bites and nettle plants, if you are touching, so this methanoic acid enters the skin and cause rashes. While acetic acid is ethanoic acid and it is safe to consume when in dilute. Next, we can qualify acid based on the strength as strong acid and weak acid. So let's just understand what we mean by strong acid. So what are strong acid? Acids which gets completely or substantially ionized when they are put in water. So if we talk about HCl, अगर if you are putting 1 mole of HCl in 1 liter of water, तो HCl के सारे molecules जो है वो ionize हो जाएंगे to form H plus and Cl minus ions. और जब हम weak acid की बात करते हैं, so weak acid for example acetic acid, तो यहाँ पर सारे molecules जो हैं वो ionize नहीं हो रहे हैं, only partially few molecules are getting ionized and giving the acid. इसको एक टेबल की फॉर्म में लेट्स अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पर जो है एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर एसिड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। सो अगर वो 100% आयोनाइज्ड हो गया है दैट मीन्स इट विल हैव 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस। 1 मोल कैन बी रिटन डाउन एज 1 रेज टू पावर 0 मोल ऑफ H प्लस आयंस। तो यहाँ पर जो pH है वो हम pH बोलेंगे, pH इज 0। ठीक है, जो भी 1 की पावर होगी उसका नेगेटिव वैल्यू इज व्हाट वी कॉल एज pH। तो यहां पर pH जो 0 है दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर कोई एसिड है लेट्स से जो 100% की जगह सिर्फ 10% आयोनाइज हो रहा है, आउट ऑफ 10 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल इज गेटिंग आयोनाइज्ड, देन वी विल से दैट अगर आपने 1 मोल ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स एसिड मॉलिक्यूल्स यू हैव पुट, तो
तो आउट ऑफ दैट 1/10 दैट इज 0.1 मोल ऑफ H प्लस आयंस जो है वो फॉर्म हो रहे हैं. 0.1 इज 10⁻⁻1. ठीक है. अब ये जो 10⁻⁻1 है तो यहाँ पर जो नेगेटिव 1 है, ठीक है, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू होगी दैट इज व्हाट वी कॉल एज pH. तो हियर द pH इज 1 एंड विद pH 1 वी स्टिल गेट अ स्ट्रॉन्ग एसिड. और अगर यहाँ पर आयोनाइजेशन सिर्फ 1% है, ठीक है, तो दैट मीन्स 0.01 मोल ऑफ H प्लस आयंस आर फॉर्मिंग, 10⁻⁻2 moles of H plus ions are forming. So pH will be how much? Yes, it will be 2. Now this is no more a strong acid because only 1% is getting ionized, but still this is not a weak acid also. We'll qualify it as mild acid. अगर आपका जो ionization है वो 1/1000 है, that is only 0.1% is getting ionized, right? So in that case जो आपका जो pH होगा that will be 3 and then it will be called as weak acid. तो जहां पर भी एसिड का जो आयनाइजेशन है वो 0.1% से कम हो रहा है, ठीक है, तो वी विल कॉल इट अ वीक एसिड. नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. सो इन जनरल वी से कि pH अगर 0 to 2 है देन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, फ्रॉम 2 to 7 इट इज अ वीक एसिड. ठीक है. सो वी कैन टेक वन मोर केस वेयर आयोनाइजेशन इज 0.01% or 1/1000th of the molecule are getting ionized. That is, one molecule out of 10,000 is getting ionized. So in that case the pH will be 4 and it's qualified as weak acid. अगर हम वाटर की बात करेंगे तो बेटा वाटर के अंदर जो है सेल्फ आयोनाइजेशन होता है. यहाँ पर अभी तक एसिड के मॉलिक्यूल्स को वाटर आयोनाइज कर रहा था और वाटर के अंदर वाटर अपने ही मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करता है एंड दैट इज it ionize 1/10 millionth of molecule. That is, out of 10 million water molecule, one molecule is getting ionized, right? In that case you will see 10⁻⁻7 mole of H plus ions are getting ionized, or pH is 7 and pH 7 will make it neutral. Now that we have understood what are strong acids and weak acids, let's see the difference between them. So strong acids are acids that ionizes completely or substantially in aqueous solution, while weak acid they ionize only partially or fractionally in aqueous solution. क्योंकि strong acid completely ionize हो रहे हैं, so their pH is between 0 to 2 and weak acid their pH is between 2 to 7. जो strong acids हैं इनमें H plus ions are substantially large, so इन एसिड्स की जो रिएक्शन है वो विग्रस और फास्ट होगी, while weak acids when they are involved in reactions that reactions are slow and mild. जो strong acids हैं इनमें H plus ions और जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं those are very high in concentration and thus they conduct electricity very well. Weak acid भी electricity conduct करेंगे but their conductivity is low. The examples of strong acids are hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, perchloric acid. These are very strong acids. And examples of weak acids are acetic acid, sulfurous acid, nitrous acid. So if you'll observe, sulfuric acid is very strong acid and sulfurous acid, it's a weak acid. And third way in which we can classify acids is based on concentration. So if we are adding substantial amount of acid in water, then it will be called concentrated acid. That is, the concentration of acid per unit of solution is high. And if we are just putting, let's say, 1 drop of acid in water, now that water will not be neutral anymore, it will be acidic, but it will be called as dilute acid because the quantity of acid is very, very less. So dilute acid are acids in which there is low concentration of acid per unit of volume. Very famous question कि अगर आप किसी acid को dilute करना चाहते हैं, then we should add acid in water and we should not add water in acid. ठीक है? What's the logic? What's the reason for it? तो बेटा जो acid और water की जो reaction है that is highly exothermic. बहुत सारी heat energy सडनली रिलीज होती है
और सेकेंड फैक्ट विल यूज इज कि एसिड्स जो है वो दे आर मोर डेंस देन वाटर, तो एसिड दे सेटल डाउन एट द बॉटम। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं हम जहां पर हम एसिड जो है वो पानी में ऐड कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? तो व्हेन यू आर एडिंग एसिड इन वाटर, तो एसिड जो है वो वाटर में बॉटम पर जाकर सेटल होगा, एंड जो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी तो एसिड के ऊपर जो बहुत सारा पानी है विच हैज गॉट वेरी हाई स्पेसिफिक हीट, तो दैट वाटर विल एब्जॉर्ब ऑल द हीट विच इज गेटिंग रिलीज्ड, है ना, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। यहीं पर अगर हम सेकेंड सिनेरियो लेते हैं जहां पर हम वाटर ऐड कर रहे हैं एसिड में, तो ये जो सडन और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो वो थोड़ा सा पानी जो है वो इस हीट को जब एब्जॉर्ब करेगा तो वो बॉयल ऑफ कर जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, और वो जो स्टीम जब राइज करेगी तो अपने साथ जो है वो एसिड को लेकर राइज करेगी, एंड देन देयर विल बी स्प्लैश और इंजरीज विल टेक प्लेस। ठीक है, तो इसी चीज को हम एक बार वीडियो में देखते हैं, व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली व्हेन वी ऐड वाटर इन एसिड। अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? See, this is what splash will happen when you add water in acid. This question is very interesting और फर्स्ट गो में तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन इज व्हाई स्लाइटली dilute sulfuric acid is stronger than highly concentrated sulfuric acid। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक है हमारे पास जहां पर हमने थोड़ा सा वाटर लिया है और बहुत सारा H2SO4 लिया है एंड वी हैव गॉट एसिड सॉल्यूशन आउट ऑफ इट, एंड सेकेंड इज हमने इसी में थोड़ा सा वाटर और मिला दिया है। नाउ द क्वेश्चन इज थोड़ा सा पानी मिलाने पर जो स्लाइटली dilute सल्फ्यूरिक एसिड मिला हमें, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग कि थोड़ा सा पानी मिलाने से एसिड जो वो स्ट्रॉन्गर हो गया, जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड था वो और स्ट्रॉन्ग बन गया। ठीक है, तो लेट्स सी द लॉजिक फॉर इट। तो वी नो है ना, जो एसिड है वो हमारा H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन से डिफाइन होता है, और ये H प्लस आयंस हमें एज सच रेडीमेड नहीं मिल रहे हैं। जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो वहां पर वाटर जो है वो इनको आयोनाइज करता है, और उस वजह से जो है उसमें वाटर के अंदर H प्लस आयंस फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, सो जब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग तो कर रहे हैं H प्लस को, बट इतने वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है कि वो सारे H2SO4 के मॉलिक्यूल्स में H प्लस आयंस अलग कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर H2SO4 में अगर H2O इनसफिशिएंट है तो जो आयोनाइजेशन है वो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा, जो H प्लस आयन से सिर्फ एक ही फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप थोड़ा और पानी डाल रहे हैं तो दैट वाटर इज अवेलेबल टू आयोनाइज द रिमेनिंग H2SO4, और जो या फिर जो पहले वाली H2SO4 है वो उसको कंप्लीटली आयोनाइज कर सकेगा। ठीक है, तो उस वजह से जो है बिकॉज ऑफ दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग एंड देन विल से दैट एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर। एंड ऑफ कोर्स अगर आप और पानी डालते जाएंगे तो एक टाइम पर जो है वो मैक्सिमम डिसएसोसिएशन हो जाएगा जब सारे H2SO4 में H प्लस जो है वो अलग हो चुके हैं, और देन व्हेन यू आर एडिंग मोर वाटर, है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पर देन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर है, एंड देन व्हेन यू ऐड फर्दर वाटर देन इट विल बिकम dilute एंड इट विल बिकम वीक। तो यहाँ पर जो अगर आप और वाटर डाल रहे हैं तो H प्लस जो आयंस है वो पूरा कंप्लीटली H2SO4 is completely getting ionized and acid has become strongest. So this is something like if you will take HCl, which is a gas, and a pure HCl, this is not acidic, but if you will mix it in small amount of water, ठीक है, a fixed quantity of gas, अगर आप उसको थोड़े से पानी में मिक्स कर रहे हैं तो small amount of H plus ions will be generated. Now if you will, it will have some acidic strength, और अगर आप इसमें थोड़ा और पानी मिलाएंगे तो वो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, एंड इफ यू विल स्लाइटली dilute it, है ना, अगर थोड़ा पानी मिलाकर और dilute कर रहे हैं देन एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज फर्दर एंड इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल HCl के जितने भी आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे आयोनाइज ना हो जाए। वंस ऑल द मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड, नाउ फर्दर एडिंग ऑफ वाटर विल decrease the strength, but till then the strength will keep on increasing.
I hope your concepts related to classification of acids is clear. We'll see you in next video. Till then, bye bye.